جب تاریخ علی ابن ابی طالب پڑھا تو اس نے آخر میں دیکھا کہ مولا کائنات جب کوفے میں گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کائنات کوفے کی مسجد میں گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص اوندھا سو رہا ہے اور تلوار کو چھپائے ہوئے ہے، خنجر چھپائے ہوئے ہے۔ میرے مولا نے کہا اٹھ، نماز کا ٹائم ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اٹھ جا، نماز کا ٹائم ہے۔ اور میرے مولا کو تو معلوم تھا نا کہ یہ ضربت لگانے کے لیے آیا ہے نا، لیکن علی نے نہیں مارا۔ جب علی کو ضربت لگ گئی تو چاہنے والے آئے، کہنے لگے مولا معلوم تھا تو قتل کر دیتے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، معلوم تھا تو مار دیتے، آپ نے مارا کیوں نہیں؟ آپ کے علم میں تو تھا ہی کہ ضربت لگائے گا۔ علی کا جملہ کیا ہے، میرے مولا کا جملہ کیا ہے؟ مولا نے کہا گناہ سے پہلے سزا نہیں دی جاتی، گناہ سے پہلے سزا نہیں دی جاتی، ابھی تو گناہ کیا ہی نہیں تھا، سزا کس بات کی دے دیتا؟ صلوات پڑھتے رہو۔ مجھے تو معلوم تھا کہ قتل کرنے آیا ہے، لیکن پہلے یہ ضرب لگاتا تب میں سزا دے دیتا۔ اگر علی عادل نہ ہوتے تو کوئی علی کو قتل نہیں کر سکتا تھا، یہ علی کی عدالت تھی، سامنے آ گئی تھی۔ تو اس لیے نہج البلاغہ روز بروز مقبول ہوتی جا رہی ہے، ورنہ 100 سال پہلے کوئی نہج البلاغہ کو زیادہ جانتا بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ ہمارے علاوہ ہم میں کمیاں ہیں، اس کو ایکسپٹ کیجئے۔ ہماری سماج میں اس بات کی کمی ہے کہ ہم دور ہیں نہج البلاغہ سے، لیکن غیر قومیں کھینچی ہوئی چلی آ رہی ہیں علی علیہ السلام کی طرف کھینچی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس نہج البلاغہ نے معجزہ کر دکھایا ہے، خدا کی قسم۔ آج خدا نخواستہ تھوڑی ہمارے اوپر تکلیف آ جاتی ہے، تھوڑی ہمارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، تو ہم اپنے دوست سے شکوہ اور گلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، یہ بیماری آ گئی، یہ آزاری ہو گئی، ایسا ہو گیا، غربت ہو گئی، تکلیف ہو گئی۔ معلوم ہے آپ کے مولانا نہج البلاغہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ کہا مشکلات سے کبھی گھبراؤ نہیں، توجہ، کہا مشکلات سے کبھی گھبراؤ نہیں، مشکلات کو ہمیشہ فیس کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس سے ڈٹ کے مقابلہ کرو، مگر اس سے پہلے کہ تم اس کا مقابلہ کرو پہلے پہچان لو کہ کس طرح کی مشکل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی نہج البلاغہ بول رہا، میں مولا بول رہے ہیں، کس طرح کی مشکل ہے پہلے یہ پہچان لو۔ تو مولا کس طرح کی مشکل ہوتی ہے؟ کہا مشکل دو طرح کی، دو طرح کی مشکل آتی ہے۔ ایک تو وہ مشکل جسے تم نہیں ٹال پاؤ گے، یعنی موت۔ ایک تو وہ مشکل ہے جو تمہارے بس سے باہر ہے، موت ہے، اس پہ سب کو لبیک کہنا ہے، تمہیں بھی لبیک کہنا ہے۔ اور دوسری وہ تکلیف ہے، وہ مشکلات ہیں جس سے تم لڑ سکتے ہو آرام سے، جس کے سامنے تم جا سکتے ہو آرام سے۔ اور یاد رکھنا ہمیشہ گھبرایا مت کرو، جب کوئی مشکل بڑی یا چھوٹی آ جائے تو گھبرایا مت کرو، اس لیے کہ اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے۔ نہج البلاغہ ہے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اور جو جتنی آرام کے ساتھ مشکلات سے نکل جاتا ہے، امتحان سے گزر جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، امتحان سے گزر جاتا ہے جو جتنے آرام سے، پھر اللہ اس کو اتنا ہی اسٹرانگ بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے۔ یعنی مصیبتیں ہمیشہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ آپ پریشان رہیں، نہیں، آپ کے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ مشکلات ڈالتا ہے، آپ کے جسم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ مشکلات ڈالتا ہے، آپ کی روح کو اور طاقتور بنانے کے لیے اللہ مصیبتوں کو ڈالتا ہے۔ بھئی آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پر جتنی مصیبتیں آتی جاتی تھی، روایت کہتی ہے حسین کا چہرہ اتنا ہی چمکتا جاتا تھا، جتنی مشکلات بڑھتی جا رہی تھی حسین کا چہرہ اتنا ہی چمکتا جاتا۔ آخر بات کیا تھی؟ کہا بات یہ تھی کہ اللہ مصیبتوں سے دے دے کے حسین کو پوچھنا چاہتا تھا، حسین اتنی مصیبت، حسین کہتے تھے جتنی مصیبت بھی آئے پروردگار میری روح بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے، میرا جسم بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے، ہم طاقت کی منزل میں جا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جسم کو مضبوط کس طرح سے کیا جاتا ہے، اللہ مصیبتیں ڈال کے کیسے انسان کے جسم کو مضبوط کرتا ہے، ایک دنیاوی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ پوری طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک پروفیسر جو بیالوجی پڑھاتے تھے، انہوں نے بچوں کو بلایا، کہا آج کچھ پریکٹیکل کریں گے۔ کہا کیا ہے صاحب؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا پریکٹیکل کرنے والے ہیں۔ کہا کیا، کون سا پریکٹیکل؟ بچے سب گھیر کے کھڑے ہو گئے، وہ لیب میں گئے، ایک انڈا لے آئے، بٹر فلائی کا ایک انڈا لے آئے، جس میں بٹر فلائی اندر ہوتی ہے، تتلی کا انڈا لے آئے، کہنے لگے دیکھو اس میں سے ابھی بچہ اس کا نکلے گا باہر، ابھی یہ پروانہ بھی نکلے گا اس میں سے باہر، انتظار کرو۔ بچے انتظار کرتے رہے، تھوڑا سا وہ نیچے آیا، اپنے انڈے سے تھوڑا سا باہر نکلا، بچے انتظار کرتے رہے۔ پروفیسر نے کہا تھوڑی دیر تم لوگ رکو، ابھی میں فوراً آ رہا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا لیب سے، پروفیسر باہر چلے گئے، بچے کھڑے رہے، دیکھتے رہے۔ اب دیکھا
देखा कि वो बटरफ्लाई के जो बच्चा है अंदर, वो बहुत ज्यादा अपने को पैर मार रहा है अंदर, वो कोशिश कर रहा है कि बाहर निकल आए। इन नौजवानों ने देखा, इनको रहम आ गया कि लगता है ऐसा ना हो कि अंदर ये मर जाए, लिहाजा उन्होंने उसकी मदद कर दी। नीचे से उसका पर पकड़ा और आहिस्ते से जरा नीचे खींच दिया उसको। जैसे ही खींचा वो निकल आया तो थोड़ी देर उड़ा और वहीं बैठ गया, और 2, 3, 4, 5 सेकंड के बाद वो मर गया। तवज्जो चाह वो मर गया। अब प्रोफेसर वापस आए, आकर कहने लगे कि क्या हुआ? कहा बच्चा निकला? कहा निकला। कहा परवाना कहाँ है? कहा ये है। कहा तो मर गया है? कहा हाँ। कहा क्या मरा हुआ आया था? कहा नहीं। जब ये निकल रहा था तो हम लोगों को अफसोस हो रहा था कि इतना हाथ पैर मार रहा, कहीं ऐसा ना हो अंदर ही मर जाए, लिहाजा हम लोगों ने मदद करके इसे बाहर निकाल दिया। इसकी मुश्किलात में थोड़ी मदद करके इसे बाहर निकाल दिया। प्रोफेसर ने कहा कि जिसे तुम मुश्किलात समझ रहे थे वही उसकी जिंदगी की जमानत थी। जिस चीज को तुम मुश्किलात समझ रहे थे वही उसके जिंदगी की तवील जिंदगी की जमानत थी। भाई जितना वो हाथ पैर मारता उतना ही ताकतवर होता। तुमने मदद करके उसके हक में जुल्म कर दिया। इसका मतलब ये है भाई मुसीबतें इसलिए आती है ताकि तुम स्ट्रांग हो जाओ। छोटी छोटी मुसीबतें यहाँ झेलते रहो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तब भी जबान पर कोई शिकवा ना आने पाए। सलावत पढ़ना है ना भाई, जबान पर शिकवा नहीं आना चाहिए। क्या है मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और खुदा की कसम, आइए फिर नहजुल बलागा की तरफ चलता हूँ। मैंने कहा है नहजुल बलागा से पूरी गुफ्तगू, तो पूरी गुफ्तगू नहजुल बलागा से। मेरे मौला ने क्या कहा? उस्मान इब्ने हुनैफ, मेरे मौला ने इनको खत लिखा और खत लिखने के बाद समझाया सख्तियों के बारे में। कहने लगे क्या है उस्मान इब्ने हुनैफ, दरख्त 2 तरह के होते हैं। पूरी तवज्जो चाहो, दरख्त 2 तरह के होते हैं। कुछ वो दरख्त होते हैं जो सहरा में उगते हैं और कुछ वो दरख्त होते हैं जो पानी में उगते हैं। लेकिन उस्मान बिन हुनैफ जो दरख्त सहरा में उगते हैं उनकी डंडियां बड़ी मजबूत होती हैं। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं भाई, बड़ी बेदारी से सुने मेरे मौला का जुमला। कहने लगे जो दरख्त सहरा में उगते हैं, चटियल मैदान में उगते हैं जहां पानी का एक कतरा नहीं होता, उनकी डंडियां बड़ी मजबूत होती हैं, तोड़े नहीं टूटती हैं। लेकिन जो दरख्त पानी में उगते हैं उनकी डंडियां बड़ी कमजोर हुआ करती हैं, एक छोटा बच्चा भी चाहे तो टुट से तोड़ दे उसे। उस्मान बिन हुनैफ तुमने देखा नहीं है? मौला क्या कहना चाहते थे? मौला फरमाना चाहते थे उस्मान बिन हुनैफ, पानी की दरख्त को जरूरत जरूर होती है, मगर याद रखो सहरा में जो दरख्त निकलते हैं वो मेहनत और मशक्कत करके पानी लाते हैं, खींच खींच के अपनी जड़ों से पानी दूर दूर से खींच कर लेकर के आते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो ताकतवर होते हैं, वो बड़े होते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। जिन्हें हर वक्त पानी मिला करता है वो कमजोर हो जाते हैं। तो अब इस बात पर कोई इतराए नहीं कि हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आई है। फला के ऊपर बड़ी मुसीबतें आई हैं, जिस पर मुसीबतें आई हैं अल्लाह उसे मजबूत बना रहा है। सलावत पढ़ना मोहम्मद। अब ये फख्र की बात नहीं कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई, मेरे ऊपर आज तक कोई मुश्किल नहीं आई। मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दुआ है, अल्लाह का करम है, मौला की दुआ है। ठीक है, मौला की दुआ है। एक शख्स ने पैगंबर को दावत में बुलाया अपने घर और कहा या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। हुजूर तशरीफ ले गए। कल या रसूलल्लाह अल्लाह का करम है कि कभी मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई। हुजूर वहां से उठे और घर से बाहर निकल गए। कहा तो फिर तुम मोमिन ही नहीं है कि तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई। भाई मोमिन उसे कहते हैं जिस पर हमेशा मुसीबतें रहे। सलावत पढ़ना मोहम्मद। छोटी छोटी परेशानियों से घबराइए नहीं, उसे फेस कर लीजिए, सदका निकाल लीजिए। हमारे पास इतनी दुआएं हैं, उसे पढ़ लीजिए। मफातिहुल जनान पूरी रखी हुई है। भाई आज भी यही शिकवा है कि हम इबादत गुजार, हम नमाज पढ़ने वाले, हम रोजा रखने वाले, हम इताअत करने वाले, हम मजलिसें करने वाले, हम मजलिस कराने वाले, हम मातम करने वाले, लेकिन सारी मुसीबत मौलाना हम ही लोग के ऊपर है। और ये देखिए जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, जो कभी एक टक्कर लगाते ही नहीं है, इनको कुछ नहीं होता सर। सारी मुसीबत हमारे ऊपर है। ये कभी कभी नहीं, हमेशा जबान पर ये जुमला रहता है, कभी अदा हो जाता है और कभी नहीं कहता इंसान। कभी कभी नहीं कहता लेकिन कभी कभी जबान से निकल जाता है। अब मैं समझा रहा हूं ऐसा क्यों होता है, होता क्यों है ऐसे। भाई देखिए, अभी फर्ज कीजिए कि मैं यहां बैठकर चाय पीऊं,
ठीक है, और वो चाय का एक कतरा उड़ के मेरे चश्मे में पड़ जाए, ठीक है, चाय का एक कतरा उड़ के मेरे चश्मे में पड़ जाए, तो मेरा इस वक्त काम क्या होगा? फौरन चश्मा उतार लूंगा, मिसाल से समझाना चाह रहा हूं, और फौरन पोंछ लूंगा। अच्छा, अगर यही चाय मेरे कपड़े पे गिर जाए तो मैं इंतजार करूंगा मजलिस खत्म हो जाए, घर जाऊंगा, धुलवा लूंगा, है ना? अगर यही तवज्जो, और यही चाय अगर फर्श पे गिर जाए तो साहिब मजलिस कहेगा आइंदा साल देखा जाएगा इंशाल्लाह, कालीन धुल दी जाएगी, है ना भाई? ऐसा है कि नहीं भाई? रही चाय का एक कतरा जब चश्मे पे गिरा तो फौरन पोंछ लिया, कपड़े पे तो ताखीर हुई 4 घंटे की, घर जाकर के धुलवा लूंगा, और जब कालीन पे गिरी चाय वही तो कहा अगले साल काम हो जाएगा। भाई यही तो मसला है ना, जब किसी मोमिन पर जल्दी से मुसीबत आ जाती है तो अल्लाह कहता है तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई, तुम तो चश्मे के मानिंद हो, जल्दी से मुसीबत डालकर गुनाहों से माफ कर दूंगा, तो चाह रहा हूं तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें छुट्टी दे दूंगा जल्दी से, चश्मे की तरीके से। कहेंगे साहब वो जो कभी टक्कर ही नहीं मारते, कहेंगे उनकी हालत वही 4 घंटे वाली है, एहसास उनसे भी होगा, बदला उनसे भी लिया जाएगा, हिसाब किताब उनका भी होगा, थोड़ी ताखीर से। कहेंगे वो जो अल्लाह को मानते ही नहीं, कभी कालीन वाले हैं, आखिर में हो जाएगा हिसाब। वो तो बड़े आयश से जिंदगी में, उनके हालात तालीम वाली है। होना तो है हिसाब सबसे। आप खुश नसीब हैं कि फौरन छोटी सी मुसीबत डाली और गुनाह को माफ करके आपको पाक करके बाहर निकाल दिया। अल्लाह ने कहा तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, तुम हमारे चाहने वाले हो, तुम्हें गुनाहगार बना के कब तक रखेंगे? थोड़ी सी मुसीबत डालेंगे, तुम्हारे गुनाह को माफ कर देंगे, तुम्हें पाक करके बाहर निकाल देंगे। भाई क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है? बेशक। एक सलवात पढ़ देना मोहम्मद। घबराइए नहीं, मुसीबतों से मत घबराइए, और इनसे उनसे कहने से फायदा भी क्या है? हम आशुमा कर भी क्या लेंगे? अगर कुछ कहना है तो बारगाहे मौला में जाइए, उनसे राजो नियाज कीजिए। जो कहते हैं आओ हमसे मांगो, जो मांगना चाहो मांगो, उससे कह दीजिए जो कह रहा है उदूनी अस्तजिब लकुम, बुलाओ मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बैठा हूं, उससे कहिए मसला हल हो जाएगा। इनसे उनसे कह के अच्छा, सुनने वाला भी कभी कभी घबरा जाता है, आखिर में कह देता भाई अब रहने दीजिए, मालूम है आप बीमार होंगे, ठीक है ना? वो आखिरी हद वही होती है कि कहते हैं हाँ मालूम है आप बीमारी होंगे, तब वो पलट कहने लगा नहीं अल्लाह का शुक्र है अब तो हम ठीक है माशाअल्लाह। एक सलवात पढ़ दे लिहाजा मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मौका मिले तो थोड़ा सा नहज बलागा पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, देखिए क्या क्या हिकमतें खुदा की कसम, 2 4 5 हिकमतें याद कर लीजिए, देखिए कितना काम आती है आपको। भाई अजीब बात है, तवज्जो चाह रहा हूं। मेरे मौला ने कहा नहजुल बलागा में, फिर कलिमात कसार की तरफ जा रहा हूं, मेरे मौला ने कहा अगर तुम्हारा कोई पैसा डूब जाए तो सदमा मत करो। क्या कहना? कितनी अजीब बात है, नुकसान हो जाए सदमा मत करो। क्यों मौला, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरा इतना करोड़ डूब गया, मेरा लाखों डूब गया। कहा नहीं, इतना समझ लो, दिल को इस बात से एहसास इत्मीनान दिला लो कि जो पैसा तुम्हारा डूब गया है उसे डुबा करके तुमने एक तजर्बा खरीद लिया है। वो पैसा दे के तुमने जो तजर्बा हासिल किया है, अब औरों को बताते रहो कि कोई और न डूबने पाए। ये क्या है? कलिमात क़सार है। खुदा की कसम एक एक हिकमतें हैं कि जिसने मुजज़ा कर दिखाया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बस मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, लेकिन अब वहां तक जाना चाहता हूं जहां तक मजलिस का इख्तिताम हो जाए। हमेशा सुनते हैं कि मौला ने मिंबर से कहा सलूनी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहो पूछो। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अली अलैहिस्सलाम से पहले भी किसी ने दावा नहीं किया और अली अलैहिस्सलाम के बाद भी किसी ने दावा नहीं किया, और जिसने भी दावा किया वो जलील हो गया। सही बात। सलूनी का दावा जिसने भी अली अलैहिस्सलाम के बाद किया वो तारीख गवाह है, मैं उसे नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग के पेश नजर है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, आखिर मौला ने कहा क्यों कि पूछो? भाई किसी इमाम ने तो नहीं कहा, तो ये मौला ने ही क्यों कहा आओ पूछो आओ पूछो आओ पूछो, मुझसे पूछो? सलूनी का दावा किया ही क्यों? अब मैं अजीब सवाल उठा रहा हूं आज और चाहता हूं ये इसका जवाब भी आप तक पहुंच जाए। देखिए मसला ये है
कि जितनी भी कौमें हैं दुनिया में, यहूदी हो, ईसाई हो, अपने ही फिरके में जितने भी हों, मुसलमानों में भी जितने भी हैं, सब मना करते हैं कुछ पूछो नहीं। तो चाह रहा सब ये कहते हैं पूछो नहीं। भाई यहूदी के पास जाके पूछो नहीं, जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो। ईसाई को मैं फ्रांस में था, मैंने खुद कहा पूछ के आओ, उसने कहा पूछो नहीं, जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो वरना दीन से खारिज हो जाओ। ठीक है ना। मजूसी से कहिए कि ऐसा क्यों है, आप पूछो नहीं। अच्छा, हमारे फिरक में देख लीजिए, मुसलमानों में कहते हैं पूछो नहीं, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ईमान खतरे में पड़ जाएगा, बस ईमान लाते जाओ, सवाल न पूछो। तो भाई सवाल पूछने में प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है? तो अब पूछिए उलमा से कि सवाल पूछने में मुश्किल क्या है। कभी जब सवाल पूछा जाता है किसी से भी तो उसकी इल्मी लियाकत का इल्म हो जाता है। तवज्जो चाह रहा, उसकी इल्मी हैसियत और लियाकत का इल्म हो जाता है। तो यानी मकसद कहने का ये है कि अगर आप उससे सवाल पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, और जब मुझे पता चल जाएगा मैं कितना पढ़ा लिखा हूं तो मेरी मारिफत आपके पास आएगी। यानी मैं कौन सा मौलाना हूं, कहां से पढ़ के आया हूं, ईरान में कितना रहा हूं, जब कुछ पूछेंगे तब ना पता चलेगा। तो जो चाह रहा हूं, जब पूछेंगे नहीं है तो मारिफत कहां से हासिल होगी? तो भाई दुनिया ने ये कहा कि पूछो नहीं मगर ईमान ले आओ, पूछो नहीं मगर अमल करो। एक दुनिया में अली ही थे जिसने कहा पहले पूछो ताकि पहचान लो। पूछो पहले मुझे पहचान लो, जब मुझे पहचान लेना तब ईमान ले आना। सलावत पढ़ते मुझसे पूछो, आओ, जब तुम मुझे पूछोगे, मुझसे पूछोगे तो मेरी मारिफत होगी। पहले मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूं। जब मुझे पहचान लोगे कि मैं कौन हूं तब तुम्हें मुझ पर ईमान लाने में परेशानी नहीं होगी। हर जगह ये हुआ कि पहचानो ना, ईमान ले आओ। भाई पूछो ना यानी पहचानो ना, जब सवाल होगा तो पहचान लिया जाएगा। वहां कहा गया पहचानो नहीं हमें, खाली ईमान ले आओ। अली ने कहा नहीं, पहले पूरी तरीके से मुझे पहचान लो। मैं सलूनी कह रहा हूं, और एक अली को पहचान लोगे तो इसके बाद जितने अली आएंगे सबको तुम्हारी नजर में होंगे, सब तुम्हारी नजर में होंगे कि पहला अली वैसा था तो सारे अली वैसे ही होंगे, क्योंकि सबके सब कुल्लो ना मोहम्मद के मिसदाक हैं। सलावत ऐसी बात है। और वही सलूनी का मसला था कि हमारे बुजुर्ग जो इस्लाम में गुजरे हैं बड़े अच्छे लोग थे, भाई बड़े कायदे के लोग थे, हमेशा याली याली किया करते थे। याली ये मसला सुलझा दीजिए, याली मुझे बचा लीजिए, याली मुझे हलाकत से बचा लीजिए। बड़े अच्छे लोग थे भाई, हमेशा कहा करते थे याली याली। ये तो आज पता नहीं कौन सी नहुसत आ गई कि याली कहने से लोग गुरेज करने लगे, वरना पहले तमाम बुजुर्ग कहते रहे हैं। भाई तारीख भरी पड़ी है, लोगों ने कहा याली ये कर दीजिए, याली वो कर दीजिए। भाई वो तो हमेशा याली याली कह के खिताब किया करते थे, कभी अली नहीं कहते थे, याली कहा करते थे, है ना। बड़े कायदे के लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, उनकी बड़ी इज्जत है माशाल्लाह। मैं तो ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ जो लोग हमेशा याली याली किया करते हैं। भाई सुने, तवज्जो चाह रहा हूँ। तो एक मुकदमा आ गया बुजुर्ग के पास। क्या आया? दो लोग लड़ते हुए आए, कहने लगे कि साहब क्या है? कहने लगे ये आता है। कहने लगे हाँ। कहने मैं गुलाब, क्या आपको कौन लग रहा है? आप बताइए। कहने तुम ही लोग बताओ, आए हो तो लड़ते हुए तुम ही लोग आए, मैं तो नहीं आया। कहने लगे साहब ये मेरा गुलाम है, मैं आता हूँ। उससे पूछा तुम्हारा क्या कहना है? कहा ये मेरे गुलाम है, मैं आता हूँ। अब दोनों फाखरा कपड़ा पहने हुए, अच्छा लिबास पहने हुए, मोती का हार पहने हुए। अब बुजुर्ग घबरा गए, जाहिर सी बात है। अब कहें तो क्या कहें, कहें तो क्या कहें? कहने लगे कि सही से बताओ, तुम जानते हो मेरा जलाल बड़ा खराब है। मैं डरा के देखा कि अब तो सही कह देगा। कहा देखो तुम मालूम है मेरा, मुझे मैं जलाल में आ जाता हूँ, सही बताओ कौन आता कौन गुलाम? कहने साहब ये गुलाम है, मैं आता। कहा तुम बताओ? कहा ये आता, वो आता। अरे अजीब मसला हो गया। अच्छा अगर मैं होता वहां पर तो मैं एक जुमला कह देता कि भाई अगर किताबें खुदा काफी है तो खोल करके फैसला कर लीजिए। जो चाह रहा हूं भाई, अगर अल्लाह की किताब काफी है तो कुरान खोलिए, फैसला कर लीजिए। अजीब बात है, अजीब बात है। कहने के अली को बुलाओ, अली को बुलाओ, इसके अलावा कोई हल नहीं कर पाएगा। अच्छा तो अब जाहिर सी बात है
कहने लगे साहब अली अपने दौलत कदे पर है। कहा अच्छा ठीक है तो हम लोग चलते हैं। तो अब अली नहीं गए, खिलाफत खुद चल के गई, अपने कदमों से चल के साहब दोनों को खड़ा कर दिया। कहा अली आज से पहले कभी ऐसा मसला आया ही नहीं था, मैं चकरा गया। ये कहते हैं वो गुलाम दिया था, ये कहते हैं वो गुलाम दिया था, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा, मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा घबराओ बैठा लिया। अब खिलाफत बिल्कुल परेशान है कि फैसला कैसे होगा। कहा कंबर यहाँ, कंबर को बुलाया। कहा ये जो दीवार है मट्टी की, इसमें 2 सुराख कर दो। कंबर ने सुराख कर दिया। अब खिलाफत सोच रही है कि अली क्या करने जा रहा है, अली क्या करने जा रहा है। कह लगे सुराख कर दो, सुराख कर दिया। कहा ऐसा करो कि दोनों से कहो कि अपना अपना सर डाल के खड़े हो जाए उसमें। अब सर डाल दिया गया, फिर अली खिलाफत से गुफ्तगू करने लगे, ठीक है ना। अब वो तो दिल में तो कुछ और चल रहा है ना, दिल तो लग नहीं रहा बात करने में, अली क्या करने जा रहा है। डाल दो सर दोनों का, इसमें दोनों का सर अंदर डाल दिया गया। तवज्जो चाह रहा हूं, दोनों का सर। अब फिर गुफ्तगू शुरू हुई, दिल नहीं लग रहा है बात करने में, अली क्या करने जा रहे हैं। एक मर्तबा अली ने कहा गुलाम कंबर, जो गुलाम है उसका सर काट दो, जो गुलाम है उसका सर काट दो। जो गुलाम था उसने अपना सर खींच लिया, जल्दी से उसने अपना सर खींच लिया। एक मर्तबा दिल तो चाहता है ये जुमला कह दूं, भाई खिलाफत अली को इल्मे गैब का मालिक समझे ना समझे, गुलाम जरूर जानता था। गुलाम को मालूम था अली इल्मे गैब जानते हैं, मेरी गर्दन काट देंगे। कहा देखिए पकड़ गया चोर जिसे आप लेकर के आए थे, सलावत पढ़ देना। कीजिए अपने मौला, बेशक। अब नाज कीजिए शिया होने को, बेशक बेशक। चूंकि अली के सिवाय कायनात में कोई ये मसला हल भी नहीं कर सकता। खुदा की कसम जब वो पकड़ के आया था तो अली फौरन कह सकते थे कि ये गुलाम है, ये आका है, मगर फिर ये लोग आते खड़े हो जाते कि अली दलील क्या है ना। तो अली तो नफ्सियात से वाकिफ थे ना, और इन लोगों को खूब पहचानते भी थे। लिहाजा कहा नहीं ऐसा फैसला करूंगा तो गुलाम खुद कह देगा कि मैं गुलाम हूँ। सलावत पढ़ देना मोहम्मद। फिर कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। वो अली जिसने नहजुल बलागा जैसी किताब हमें अता कर दी, उस अली ने कहा कि जब भी दीन पर कोई वक्त आएगा तो जब अली की जरूरत पड़ेगी अली कुर्बानी देगा, और जब अली के बच्चों की जरूरत पड़ेगी अली अपने बच्चों को। अगर हुसैन की जरूरत पड़ी तो हुसैन जाएंगे, अगर हसन की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो हसन जाएंगे, और अगर मेरा 34 बरस का अब्बास जाना चाहिए तो वो भी जाएगा। गौर फरमाना, मैं क्या बसाए बस करूं। अय्याम अज़ाब जिसका इतना इंतजार किया गया था, हुसैन घरों में मेहमान हुए थे, हुसैन अब जा रहे हैं और 2 दिन और बाकी थे, हुसैन रुखसत हो जाएंगे। किसी को नहीं मालूम कि अगले साल फातिमा के लाल के कौन मजलिस करेगा। लिहाजा ये वक्त या अय्याम गनीमत है कि फातिमा को उनके लाल का पुरसा दिया जाए, फातिमा को उनके लाल के शोक में और हम में ऐसा पुरसा दिया जाए, और वो भी आंसुओं का पुरसा। अर्ज करूंगा, मेरा दिल चाहता है कि मैं बाबुल हवाइज के हवाले से चंद बातें अर्ज कर दूं। जब मदीना से काफिला चला था, मैं बस कुछ जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। मदीना से काफिला चला था तो एक मर्तबा काफिला जाने लगा तो कोई कनीज घर से बाहर निकली और आकर मौला अब्बास से कहने लगी कि मौला अब्बास आपकी माँ आपको बुला रही है। अब्बास की माँ को तो पहचानते हैं ना, वो उम्मुल बनीन जिसने कहा था ला तदउन्नी वही के उम्मुल बनीन, आज के बाद मुझे बेटों की माँ न कहना। कहेंगे मौला आपको आपकी माँ बुला रही है। मौला अब्बास फिर गए, उतरे, घोड़े से उतर के गए
कह लगे अम्मा फरमाइए, कुछ कहना बाकी रह गया। कहा हाँ बेटा, 2-3 बातें अर्ज कहना चाहती हूँ, उसे हमेशा ज़हनों में महफूज रखना। हाँ हाँ क्या? कहा बेटा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन देखो ख्याल रखना, हुसैन फातिमा का बेटा है और तुम मेरे बेटे हो। जब कभी भी खिताब करना हुसैन से, गुफ्तगू करना, तो आका कहना, मौला कहना, भाई ना कहना, भाई ना कहना। हाँ हाँ अम्मा, कभी भाई नहीं कहूँगा, तुमसे वादा करता हूँ कभी भाई नहीं कहूँगा। कहा और अब्बास देखो, ज़ैनब फातिमा की बेटी है और तुम मेरे बेटे हो, तुम जरूर भाई बहन हो, लेकिन वो शहजादी है। ख्याल रखना कभी जब गुफ्तगू करना तो ज़ैनब के नजरों पे नजर न मिला लेना, हमेशा अपनी निगाहों को नीचे रखना। अब्बास, अरे अब्बास ने अम्मा से वादा किया, ए अम्मा बस याद रखना, अब्बास इन 2 बातों को कभी नहीं भूलेगा। जब जनाबे इमाम हुसैन ने हमेशा जनाबे अब्बास से कहा, मेरे भैया भाई तो कह दिया करो, कभी भाई तो कह के बुला लिया करो, लेकिन अब्बास ने कभी भाई नहीं किया। जब जानू में सर रखा तो कहने लगे, ए अब्बास एक वसीयत मेरी भी है, एक बात मेरी भी रख लो। कहने लगे क्या? मेरे मौला बताइए। फरमाने लगे कि भैया तुमने हमेशा आका कहा, मौला कहा, सैयद कहा, सरदार कहा, कभी भाई कहते नहीं बुलाया, एक मर्तबा अपनी ज़बान से मुझे भाई कह दो। अब्बास ने भाई कह दिया, रूह कब्र से उतनी से परवाज़ नहीं गई। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बस और दूसरा मौका तब आया जब मक्तल ने देखा कि जनाबे अब्बास का सर एक घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है। भाई लोग वजह ढूंढते हैं ना कि आखिर क्या वजह थी, अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुकता था। अरे साहिब सालारे करबला कहते हैं कि अब्बास का सर रुकता तो कैसे रुकता, जब भी नेज़े पे सर आता था माँ की बात याद आती थी। अरे ज़ैनब की नजर से नजर न मिले, अरे अब्बास का सर गिर जाता था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ ये काफिला, 2-4 जुमले और सुने और मैं ज़हमत तमाम कर दूं। ये काफिला मदीने पहुंच गया। जब मदीने पहुंचा तो बशीर ने मुनादी कर दी कि मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। ए मदीने वालों, हुसैन जो करबला गए थे वहां कत्ल कर दिए गए। हुसैन का काफिला वापस आ गया है, चौथे इमाम साथ में आए हैं। ये पहला जुलूस था अज़ादारों जो सैयद सज्जाद ने निकाला। अरे हुसैन का नौहा पढ़ते हुए सैयद सज्जाद चले, मदीने के मोमिनीन मातम करते हुए चले। एक मर्तबा मैंने मक्तल में देखा कि ज़ैनब जब रोज़े रसूल से करीब हुई तो एक मर्तबा नाना की कब्र पर नहीं गई। अरे मैंने मक्तल में देखा, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, एक मर्तबा बाकी की तरफ दौड़ती हुई गई और अब्बा की कब्र पर गिर गई। ए अम्मा, अरे ज़ैनब आ गई, ए अम्मा ज़ैनब आई, ए अम्मा मेरा हुसैन मारा गया, ए अम्मा मेरा अकबर मारा गया, ए अम्मा मेरा अब्बास मारा गया। अरे ज़ैनब रो रो के फरियाद कर रही थी। सुन सके तो आखिरी जुमला सुने, मैंने मक्तल में खुद देखा है जो अर्ज कर रहा हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने दामन के पास से कुछ उठाया और अम्मा की कब्र पे रखा। ए अम्मा, जब कोई सफर से वापस आता है तो सौगाते सफर लाता है। ए अम्मा, मैं भी अपने भैया का कुर्ता लाए हूँ। अरे ये मेरे भैया का कुर्ता, खून से भरा हुआ कुर्ता, अरे कब्रे ज़हरा पे रख दिया। मेरा दिल कहता है कब्र लरज़ने लगी होगी। ए बेटी ज़ैनब, अरे कुर्ते को उठा ले। अरे मैं उस वक्त वहां थी जब मेरे हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था। रिज़न के क़ज़ाए अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व